Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilivir. I welcome you in my YouTube channel. In previous session, we were discussing about types of communication. Okay, types of communication were of three types: verbal communication, non-verbal communication and visual communication. लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की दैट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन फ्लो इन विच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर सेंडिंग द मैसेज इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. जिस टाइप के कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ किया जाए अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. हम लोगों ने देखा था जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स, any type of written communication is also a form of verbal communication. And if we are talking face to face, one to one or one to many, then this is also a form of verbal communication. In today's session we are going to discuss about non-verbal communication and visual communication. So you can see on the screen that non-verbal communication is the message we send to other without using any words. Okay, in verbal communication we were using words, but in non-verbal communication we will not use any kind of words as shown in the figure. You can see here we send signals and messages to others through expressions, gestures and body postures. बॉडी पोजीशन हमारे बॉडी के एक्सप्रेशन और बॉडी के जेस्चर्स जो हैं वो हमारी लैंग्वेज को बता देते हैं. फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव done a great job and somebody want to appreciate you, आपकी तारीफ करना चाहता है, then he will use a symbol of thumbs up. thumbs up शो करने का मतलब है you have done a great job, okay, you did well. Okay, in the same way if somebody is moving his head in assent, okay, if he is giving his consent in yes, then you will understand that person is showing his agreement for your action. अगर कोई सर अपना हिलाता है तो आप उससे ये समझ जाते हैं कि ये मना कर रहा है किसी काम के लिए या फिर ये एग्री कर रहा है. Okay, in this lesson we will learn about non-verbal methods of communication skill and its types and also importance. You can see in the figure नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर एक्सप्रेशंस. स्माइलीज़ हम लोग व्हाट्सएप पे कई बार भेजते हैं, स्माइलीज़ या फिर हैंड एक्सप्रेशंस. तो उससे क्या होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बॉडी लैंग्वेज लाइक जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, हैंड शेक. somebody you are talking to somebody and he is not making eye contact with you, that means he is not agreeing with your statement. आपकी बातों से वो बिल्कुल सहमत नहीं है. हैंड शेक इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ non-verbal communication. if you want to greet someone, अगर verbal communication में आपको किसी को greetings देने हैं, then you will wish him good morning, good evening or happy birthday, something else. Okay, and if you are greeting someone by meeting him, then you will just make a handshake. It stands for you are welcoming him. पैरा लैंग्वेज, मूक बधिर लोगों के लिए जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, साइन लैंग्वेज, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पॉस्चर्स आप लोग देख सकते हैं, एक पॉस्चर जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है. पॉस्चर में ये सर के ऊपर हाथ रख के एक इंसान बैठा हुआ है, दैट मीन्स ही इज़ हैविंग सम ट्रबल, वो किसी परेशानी में. जेस्चर्स आर ऑल्सो टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, ऑल दीज साइंस आर अ सिंबल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Now we will learn how non-verbal communication is important in our day-to-day life. In our day-to-day communication, it is observed that most of the communication is done using body movement. ठीक है, facial expressions के through. facial expressions से ही आप बता देते हैं that you are agree with the statement of other person or not. ठीक है, अपने हाथों को हिला के आप बता देते हैं कि आप एग्री हैं या नहीं है. ओके, वॉइस कंट्रोल, वॉइस की टोन, pauses and less than 10% is done using words. ज़्यादातर हम अपने कम्युनिकेशन को अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और पोस्चर्स के थ्रू ही करते हैं. ओके, इन मोस्ट
if conversation is very short, then we try to send a non-verbal communication message towards other party. तो आप लोग एक पाई चार्ट देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है ग्रीन वन इज शोइंग वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी लेस. हम जब किसी से बात करते हैं तो उसमें वर्ड्स का यूज़ बहुत ही कम करते हैं जनरल वे में. अगर हम लोग कोई फॉर्मल टॉक नहीं कर रहे हैं, इनफॉर्मल टॉक में वर्ड्स का यूज़ बहुत कम करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द यूज़ इज डन in the form of expressions, movement and pictures. Okay, voice control is also a part of non-verbal communication. voice control में आपके जो बोलने का एसेंट है, जो बोलने की स्पीड है, जो पॉजेज हैं, वो आपके बात को सामने वाले को क्लियर कर देता है. As we can see in the figure 1.5, there is very less scope in our informal communication for words. Maximum communication is non-verbal among us. We communicate using words, tone, voice and body languages as given in the table. Hands movement, टेबल में आप लोग देख रहे हैं हैंड्स मूवमेंट, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज. रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, हम लोग कभी कभी हाथ उठा के हिलाते हैं किसी सामने वाले को देख के. दैट मीन्स वी वांट टू ग्रीट हिम, हम लोग उसे विश करना चाहते हैं, हाय, हेलो या फिर गुड मॉर्निंग, कुछ भी. दैट मीन्स इट इज़ अ posture of gesture of greeting someone. Pointing your finger in anger, अगर आप किसी की तरफ अपने फेशियल एक्सप्रेशंस एंगर टाइप के करके और उंगली उठाते हैं, दैट मीन्स यू आर पॉइंटिंग आउट हिम इन अ रूड वे. ऑलराइट, एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, आप किसी की बात से अगर एग्री हैं एंड यू आर हैप्पी विद हिज टॉक, देन यू विल स्माइल व्हेन ही इज टॉकिंग. And if you are making sad faces, then you are upset. Okay, so this is how non-verbal communication works and how the message is sent using non-verbal communication. If we talk about non-verbal communication on broad aspect, then it makes our message more stronger. अगर आप सिर्फ मोनोटोनस वे में बोलते चले जाएंगे, सिर्फ वर्ड्स का यूज़ करेंगे और बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, then a person will not perceive your message in the right way as you want him to perceive. Okay, using the right gesture and posture helps us to be professional at work. अपने काम में हमें अगर प्रोफेशनल होना है, देन यू शुड यूज़ राइट जेस्चर्स एंड पोस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज वेन एवर वी आर टॉकिंग विद समवन. नेक्स्ट, यूजिंग द राइट जेस्चर वाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव. अगर हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस या अपनी बॉडी लैंग्वेज को एक पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं जब हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, देन इट मेक्स आवर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. Knowing non-verbal communication helps us understand our audience reaction and adjust our behavior or communication accordingly. जब हम किसी से बात करते होते हैं तो जो सामने वाले के एक्सप्रेशंस हैं, जो ऑडियंस के रिएक्शंस हैं, these are also created according to our body language and our non-verbal communication. If verbal messages are blocked by noise or distance etc, we can use hand movements to exchange our messages. ठीक है, अगर वर्बल कम्युनिकेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा शोर है, आप किसी पार्टी में, एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी पार्टी में हैं एंड यू वांट टू कन्वे सम मैसेज टू अदर पर्सन एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर वॉइस ड्यू टू लाउड नॉइज, तो आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड बाय यूजिंग योर हैंड एक्सप्रेशंस. आप अपने हाथों को हिला के या फिर उनका यूज़ करके सामने वाले को मैसेज समझाने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दैट्स वाई non-verbal communication helps us to overcome many of the barriers of verbal communication. Lips to indicate need for silence, आप कभी कभी अपना फिंगर जो है वो अपने लिप्स के ऊपर रखते हैं, दैट मीन्स सामने वाला समझ जाए दैट यू हैव टू बी साइलेंट, आप लोगों को शांत रहना है.
Okay, so this is also a sign language which is used as non-verbal communication. Nodding your head up and down, that say yes. आप अपना सर जब ऊपर नीचे की ओर हिलाते हैं, that means you are giving an agreement, आप yes बोलना चाहते हैं. We communicate non-verbally in many ways. बहुत तरीके हैं जिससे हम non-verbally communicate कर सकते हैं. Let us learn about some of these mentioned table. Okay. सो फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशन में आवर एक्सप्रेशंस शो आवर फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, सरप्राइज, फियर. आप लोग देख सकते हैं कि फिगर में बहुत सारे स्माइलीज बने हुए हैं और इन स्माइलीज को देख के आप क्या समझ जाते हैं कि व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग अबाउट योर. हाउ टू यूज इफेक्टिवली इट स्माइल व्हेन मीट समवन. If you want to improve your communication style, then you should give a smile to other person whenever you meet someone. Keep your face relaxed, not tensed. आपके फेस पे कोई टेंशन नहीं दिखनी चाहिए. It should be relaxed. And your wording should मैच योर एक्सप्रेशंस. पता चला आप कहना कुछ और चाहते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है. ठीक है. इफ़ यू आर नॉट एग्री विथ समवन, कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को ये बता देती है दैट दिस पर्सन इज नॉट एग्रीइंग विद योर टॉक. ओके, सो योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी मैच्ड टू व्हाट यू वांट टू कन्वे. Postures also help in our communication to make it better. Postures are positions of our body. They show our confidence and feelings. हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे खड़े होने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, जिस पोजीशन में हम लोगों की बॉडी होती है, दैट रिप्रेजेंट्स अवर confirmation about the message somebody is delivering us. Keep upper body relaxed and shoulders straight. आपके shoulders straight रहने चाहिए whenever you are in a formal communication and body should be relaxed. Sit straight, rest hands and feet in relaxed position. काफ़ी लोग देखे होंगे, जब आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोगों को जब वो आपसे बात करते होते हैं तो उनका पैर हिलता रहता है या फिर वो आपस में उंगलियों को रब करते रहते हैं. ओके, दैट मीन्स उनका माइंड कहीं और है एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर टॉक. ओके, सो दीज आर द बॉडी पोजिशंस इन विच you can, by using which you can make your communication very effective. Keep hands by your sides while standing. जब आप खड़े हों तो आपके हैंड्स जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहने चाहिए. जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज. जेस्चर्स डिस्क्राइब, ऊपर जो हम लोगों ने बॉडी पोजीशन की बात की उसे हम लोग पोस्चर बोलते हैं. ठीक है. देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन जेस्चर्स एंड पोस्चर्स. बॉडी की जो पोजीशन होती है उसे पोस्चर बोलते हैं एंड जेस्चर्स डिस्क्राइब मूवमेंट्स ऑफ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अपने बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं उनके मूवमेंट को हम लोग जेस्चर बोलते हैं. स्पेशली hand, eyes, all these expressions are used as gestures. This includes waving, pointing someone, using your hand when speaking. While example, raising a hand may mean asking question. Suppose there is a class being conducting in a school. स्कूल में अगर क्लास चल रही है और कोई स्टूडेंट अपना हैंड रेज करता है, that means he want to ask something. So these are the gestures which helps us in communicating to others. Avoid pointing at people with your finger. हम लोगों को अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इन कुछ चीज़ों से बचना चाहिए. वी शुड नॉट पॉइंट अवर फिंगर टू अदर पर्सन. दूसरे की तरफ उंगली ना उठाएं. बेंड योर हेड एट लिटिल while talking or listening to someone. दैट शोज यू आर पेइंग अटेंशन. अपने सर को थोड़ा सा झुका के सुने सामने वाले को, जिससे उसे ये लगता है कि येस यू आर पेइंग अटेंशन टू हिज टॉक. टच. वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू आवर टच, सच एज शेकिंग हैंड एंड पैटिंग ऑन द बैक. अगर आप किसी की पीठ पे थपथपाते हैं, पैट करते हैं, देन इट मीन्स you are happy with his behavior and showing your agreement. For example, a firm handshake shows confidence. अगर आप सही से किसी से हैंडशेक करते हैं, that means you are very confident. Sport coaches give a pat on the back of players. जो स्पोर्ट मीट्स होती हैं, स्पोर्ट के कोच होते हैं किसी भी गेम के, वो अपने प्लेयर्स की पीठ को थपथपाते हैं. that means they are motivating for the game.
Shake hand firmly and avoid other touch gestures during formal communication. जब भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करें तो हैंडशेक को छोड़ के बाकी किसी तरह के टच को अवॉइड करें. कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो दूसरे के शोल्डर को टच कर करके बातें करते हैं, या किसी की पीठ पे, बैक पे या शोल्डर के ऊपर हाथ रख लेते हैं, उसके बाद बातें करते हैं. सो वी शुड अवॉइड दीज टाइप ऑफ टचेज in wherever we are in a formal communication. Okay, so guys, this is all about non-verbal communication, and I hope you are clear with the use of non-verbal communication and how you can make your communication effective in a formal way. In next video we will talk about visual communication, its advantages, disadvantages and importance. Till then, take care. Thank you. But you think it's so long, no,